Hello students, hope you are doing good, and in today's session we are going to complete our entire unit 10 of Madhya Pradesh Assistant Professor Syllabus English Literature. Okay, so let's start without any wasting our time. So first of all, let me brief you about all the things. So first of all, we are going to cover this unit, and this unit named as रिसर्च मेथोडोलॉजी. इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे? टाइप्स ऑफ रिसर्च, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस, डाटा कलेक्शंस एंड द डाटा एनालिसिस मेथड, देन यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड आईसीटी इन इंटरनेट, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी. देन वी विल सी एमएलए एट एडिशन स्टाइल. वहाँ पे हम सिटेशंस, एडिटिंग एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में जानेंगे. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू. Now let's move to our chapter. So first of all, what is the definition of research methodology? What is research methodology? Research methodology है क्या चीज? So research methodology is a systematic framework that guides the research process. Okay, so we are going to study the systematic framework. तो इसमें हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी, क्या क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे? यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा principle, method, technique used to identify, collect, analyze and interpret data. It also ensures that research is conducted in structured, logical and credible manner. तो ये तीन चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होती है. एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, उसके बाद क्रेडिबल होना चाहिए, है ना, कि कुछ भी नहीं लिख दिया. भले आपका रिसर्च में आप मतलब वो चीज़ आप सिद्ध नहीं कर पाते, बट स्टिल इट शुड बी अ credible manner. Okay, I hope you are clear with it. Now we are good to move to types, means we are now going to see explanation of research methodology. So first of all, we will see the importance of the research methodology, then we will see the components of the research methodology. Okay, so let's talk about the importance of the research methodology. So research methodology first of all ensures reliability and the validity of research, as well as it also helps in the selecting appropriate research methods. It guides researchers and data collection and analysis. It also enhances the credibility of the findings and provides a logical sequence for the conducting research. Not so tough. Okay, so we are good to move to the another point. So first of all, we should know the important components of the research methodology. So first of all, we have the research problem, है ना. सबसे पहले हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए. We have to identify the issue or the question to be studies. आपका जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल what is the impact of social media on the student academic performance. Okay, ये मेरा टॉपिक है, this is my research problem. And now what will I do in the second step? Then I will design the research. Okay, I will have the blueprint of the study. I will determine how the research will be conducted, and in this thing I have three types. So first of all, I can opt for the exploratory research, where I will explore new ideas. Then I can have descriptive research, where I will describe the characteristics. Okay, and in third I can have an experimental research. Basically जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो करते हैं, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कोई और बैकग्राउंड का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कर सकता है. एंड यहाँ पे हम कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप के बारे में पता लगाते हैं. आई होप वेरी क्लियर टू यू. आई एम वेरी क्लियर टू यू. सो नाउ इन थर्ड step, what will we do? We will do data collection method. We will do data collection. And how many types of data is there? There is primary data and there is secondary data. So primary data कौन से होते हैं? जो हमें सर्वेज, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन से मिलते हैं. और जो सेकेंडरी डाटा है, जैसे किसी ने पहले से बुक्स लिखी हुई हैं, जर्नल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, डाटाबेस, ये सब सेकेंडरी डाटा में आया है. ओके, then let's move to the fourth step, that is sampling techniques. After collecting the data, we have to do the sampling. So there are two types of sampling. One is probability sampling and another one is non probability sampling. Okay, so probability sampling में भी चार चीज़ें हैं. रैंडम, कुछ भी, मतलब ऐसे चार ग्रुप है ना, चार ग्रुप हैं, इसमें से कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया. देन स्ट्रेटिफाइड, देन सिस्टमेटिक, कि एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से. देन क्लस्टर, ये एक चारों का क्लस्टर है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया. ओके, सो दीज आर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. देन वी हैव नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वेर वी हैव कन्वीनियंस, जजमेंटल एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ. यू हैव सीन सो मेनी क्वेश्चन इन UGC नेट एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्नोबॉल सैम्पलिंग. ओके, this is our
fourth step. Then we have fifth step, that is data analysis method, where we will analyze data. Okay, so there are two type of method to doing this. First is qualitative analysis, where we will have thematic analysis and as well as content analysis, and another one is quantitative analysis, where we will have statistical method like regressions as well as correlations. Okay, so qualitative जो कुछ चीज़ अच्छी क्वालिटी में है, एंड क्वांटिटेटिव एक बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में ले लिया और आप उसको एनालिसिस कर रहे हैं. ओके, नॉट सो टफ. सिक्स्थ स्टेप, इट इज़ एथिकल कंसिडरेशंस. सो वी हैव सम एथिकल्स कि ऐसे किसी से अब किसी का भी आईडी चीज़ें चुरा ले रहे हैं या फिर कहीं से भी कुछ भी लिख दे रहे हैं, दिस आर नॉट ठीक है. एथिकल मीन्स यू हैव शुड गुड एथिक्स, सो यू हैव टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट. आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं तो उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए. देन कॉन्फिडेबिलिटी, देन अवॉइडिंग बियास. और एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ग्रीस कर्नाल थे, उन्होंने थॉमस मान का एक बुक है ना, ट्रांसपोर्ट हेड, उससे बहुत सारे आइडियाज लिए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही डूड, ही हैव द considerations, he have informed Thomas Mann that I am taking this particular ideas from your book, and Thomas Mann have given this consideration, and it is considered in the ethical consideration. I hope I am clear to you. I am clear to you. Great. Now let's move. Now seventh point, report writing and the presentations. This is the last method where you have to write the report. Okay, so you have to structure the research into the coherent report as well as using profile. अभी हम देखेंगे ना, हमारे MLA हमें 8th edition पढ़ना है syllabus में, but you have, you know, we have 3 types of this writing references: APA, that is American and then MLA, and then Harvard. Okay, I will make a separate video between difference between them. So if you want my separate video, you can comment down if you want that video. I hope I'm clear to you. Okay, so now let's talk about the types of research. How many types of research are there? So I have mentioned in a very smart way, I have mentioned all the types of research. I have put the description and also given you the example. So now without any wasting our time, let's dive into it. So first of all, what we have research, बेसिक रिसर्च, जिसमें हम एक्सपेंड नॉलेज करते हैं विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन, जिसमें हम इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, जैसे कि स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर. देन वी हैव नंबर 2, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च. इसमें क्या करते हैं, सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग द एग्जिस्टिंग थ्योरीज. पहले से ही कुछ एग्जिस्टिंग थ्योरी एग्जिस्ट कर रही है, हम उसको सॉल्व करेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं, रिसर्च ऑन द ड्रग डेवलपमेंट. देयर इज सम काइंड ऑफ ड्रग्स, फॉर एग्जांपल कोविड के लिए हमारे पास कोवावैक्स, कोविशील्ड है. देन वी आर डूइंग अनदर थिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ठीक है. आई होप यू आर क्लियर टू इट. सो नाउ वी हैव थर्ड, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, यूजेस न्यूमेरिकल डेटा एंड स्टैटिक टूल्स. सो इफ यू आर using numerical data as well as statistical tools, which research you are doing quantitative. Now let's have an example, survey on the customer preferences. Okay, then we have qualitative research, which is focus on the non-commercial data, opinions and experiences. Interviews on the mental health is the best example. And then we have mixed method, combines qualitative and the qualitative. अगर इन दोनों को हमने mix कर दिया, then it is called as the mixed method. And studying the effectiveness of the online education using surveys and interview, it is the example. I hope I am clear to you. Okay, so these are the types of research. How many types of research? There are 5 types of the research. Now what we will see characteristics of the good research method. So अगर आप good research methodology करते हैं तो आप इन चीज़ों को बहुत सारा विशेष रूप से ध्यान देना है. क्या क्या देना है, ये बिल्कुल सिस्टमैटिक होना चाहिए. एक आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करना है, ठीक है. उसके बाद आपको लॉजिकल होना है, बेस्ड ऑन द रीजनिंग एंड द साउंड प्रिंसिपल. देन एम्पिरिकल, रिलाइज ऑन द ऑब्जर्वेशंस एंड एविडेंसेस. व्हाटसोएवर you have observed and whatsoever evidence you got, you have to stay on it. Okay, then we have replicable, can be repeated and verifying by the others. So these are the characteristics of a good research methodology. Okay, so you can take care of it. If you want this PDF, you can join my Telegram channel. Okay, and there I will share this PDF. So the your link is there, my Telegram group channel link is there in my bio. You can join it, or I will also ping in the description. Okay, so now let's move to the research ethics. So I have told about the so many things in above, like I have told you about
ethical consideration. So now what we will see, now we will see the research ethics. So kya kya hai research ethics? So we have to avoid the plagiarism. So there are so many tools are there, so you have to comment me down the best tools you, if you have ever used to the plagiarism. Okay, then you have to maintain transparency in the data collection. जो भी आपने प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा लिया है उसमें आपको क्या रखना है, ट्रांसपेरेंसी रखना है ना। ओके उसके बाद रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलना है। उसके बाद अवॉइड मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट, आपको रिजल्ट को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करना है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ द एनी रिसर्च। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी हर एक स्टडी की बैकबोन होती है। इट इंश्योर्स दैट द रिसर्च इज द कंडक्टेड इन द सिस्टमैटिक एंड क्रेडिबल मैनर, मेकिंग फाइंडिंग्स रिलायबल एंड वैलिड। वेल स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प। ठीक है, अब हम ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एक्सपेंडिंग नॉलेज अक्रॉस द वेरियस फील्ड्स। ओके, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। और इंट्रोडक्शन बहुत ही ईजी था, आपको मैंने बहुत जल्दी अच्छे से समझा दिया है। एक बार दो बार जितनी बार आप वीडियोस देख सकते हैं इसको देखिए और सब कुछ क्लियर कर लीजिए। ओके, नाउ अब लेट्स मूव टू द चैप्टर 2, दैट इज टाइप्स ऑफ द रिसर्च। हाउ वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च इन earlier. We have seen, I have tell you in this types of research all these things. So it is prescribed in our syllabus in chapter number 2. ठीक है, इसको थोड़ा सा और डीप में जाके हम समझ लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ रिसर्च रिफर्स टू द वेरियस अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड इन द कंडक्टिंग द स्टडी। दीज टाइप्स ऑफ द क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, और इन सब चीज़ों को क्या कहाँ पे बेस्ड करते हैं, बेस्ड ऑन द पर्पस, मेथड, नेचर एंड एप्लीकेशंस। ओके, अंडरस्टैंडिंग रिसर्च टाइप्स हेल्प्स अस इन सजेस्टिंग द मोर appropriate methodologies for this study. So whatsoever research you are doing, it will help you कि आप किस टाइप की रिसर्च को ऑप्ट करें जो कि आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, है ना। सो अगर आप पहले हम लोग चलो इसको क्लासिफाई कर लेते हैं पर्पस के ऊपर। आपका कोई एग्जांपल लेते हैं, पर्पस है कोई भी चीज़ का कि सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को फाइंड करना है, तो उसमें आप बेसिक फंडामेंटल प्योर रिसर्च लगा सकते हैं, अप्लाइड रिसर्च लगा सकते हैं, एक्शन रिसर्च लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद एवोल्यूशन रिसर्च लगा सकते हैं। ठीक है, दीज आर बेस्ड ऑन द पर्पस, व्हाट्स योर पर्पस। देन वी हैव अनदर थिंग दैट इज क्लासिफिकेशन और रिसर्च अप्रोच। जो आपकी ये रिसर्च है ये किस मतलब रिसर्च अप्रोच क्या मांग रही है आपसे। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मांग रही है कि जिसमें हम न्यूमेरिकल डाटा, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स मॉडल्स यूज़ करें, या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च मांग रही है। सो व्हाट्सएवर टॉपिक यू हैव चूज, इट ऑलवेज क्लासीफाई ऑन द रिसर्च अप्रोच। ओके, और ये एक मिक्स्ड अप्रोच मांग रही है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ। ओके, नाउ एक रिसर्च का नेचर के ऊपर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। वी हैव टॉक्ड इन दी बॉक्स, आई हैव, इफ यू रिमेंबर, हमने सब बात कर ली है ना। ये सब चीज़ों ये किस, when I will share this PDF you will have clear when you will go through these examples, then you will have, because you know this PDF is so long, you can see here total 312 pages are there and we are on 299. So I have covered so many things. So if you want to join, you can join my Telegram channel and I will provide you all the notes. Okay, as well as if you want classes, I will also share the classes. Okay, so now we have another classification that is based on the time frame, and in it we have cross sectional research as well as longitudinal research. ओके, सो एक क्रॉस सेक्शन रिसर्च में क्या होता है, कंडक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। एक कोई पर्टिकुलर एक टाइम लाइन ले ले, एक सिंगल पर्टिकुलर टाइम पे आप रिसर्च कर रहे हैं। देन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कंडक्ट ओवर देन एक्सटेंडेड पीरियड, ट्रैकिंग चेंजेस ओवर टाइम, so many intervals are there. Example, a 10-year study on the impact of smoking on health. So आप बीच बीच में एक 10 साल में ये कर रहे हैं। I hope I am clear to you. Now we can move on the
classification based on the data sources. So we have no primary research is there, जिसे हम फर्स्ट हैंड डेटा बोलते हैं, जिसमें सर्वेज, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू ले रहे हैं आप लोगों का. देन वी हैव सेकेंडरी रिसर्च यूजेस एक्सट्रैक्टिंग द डाटा, जो पहले से डाटा एग्जिस्ट करता है उससे आप कुछ नया खोज रहे हैं, बुक्स, रिपोर्ट्स, डेटाबेस. ओके, दीज आर द सो सिंपल, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ था, वही सेम टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं विद अनदर डिफरेंट एग्जांपल्स. ओके, सो व्हेन आई विल शेयर दिस पीडीएफ यू विल clear to it. Now let's move to the chapter number 3, that is subjective and objective approaches. So we have two kind of approach. First one is subjective and another one is objective. So now let's see what are the subjective approach. So first of all, see, we will have the definition. First you should know the definition. So the subjective approach relies on the personal experiences, emotion, opinion and interpretations. It often used in the qualitative research where data is gathered from the individual purposes. When you are gathering data from the individual perspective, then it is known एज सब्जेक्टिव अप्रोच. ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अ रिसर्चर इज एनालाइजिंग हाउ पीपल फील अबाउट द क्लाइमेट चेंज बेस्ड ऑन द इंटरव्यूज. सो एक रिसर्चर ने क्लाइमेट चेंज के बारे में लोग कैसा क्या सोचते हैं ये इंटरव्यूज के माध्यम से समझा, एंड दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव अप्रोच. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच. देन ऑब्जेक्टिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स as well as measurable data, observable evidence. Okay, it follows the scientific and the logical framework often used in quantitative research. Please remember, this objective approach is used where it is approached in the quantitative research. एक एग्जांपल से समझते हैं. A researcher studying temperature changes using meteorological data. So अगर 10 साल के इसके पास meteorological data है, ये इससे समझ रहा है, then it is known as objective approach. I hope मैंने बहुत ही क्लियर और बहुत ही कम शब्दों में आपको सारा कुछ समझा दिया एंड आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा. ठीक है. नाउ अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ टेबल बना के पढ़ो, हर एक चीज़ को क्लियर रखना चाहिए और बहुत ही सिंपल वे में, एंड इट इज़ बेस्ट वे टू स्टडी. सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम. देन आई विल शेयर you so many strategies. I will also provide free novels that will enrich your vocabulary and you will become so fluent in English, and you will always feel comfortable when if someone as is talking to you in English. So it's my promise to you. There are so many videos also on grammar as well as how to improve your communication skills. Please also watch them. Okay. So now let's see the expect subjective approach and objective approach. So सबसे पहले हम नेचर की बात करें तो इसमें पर्सनल और इंटरप्रेटेटिव होता. देन ऑब्जेक्टिव अप्रोच में फैक्चुअल एंड मेजरेबल. देन लेट्स टॉक अबाउट द फोकस, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, इट इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल ट्रुथ. Then we have method, interviews, case studies, narratives, and in objective we have surveys, experiments and the statistics. Then examples लेते हैं psychology, philosophy, literature. English literature is there where we will use the subjective approach. Now if we have to apply the objective approach, what are the fields? Natural sciences, engineering, economics. Okay, now let's talk about the data type. So data type: non-numerical, descriptive, numerical and empirical. Okay, so these are the data type. I hope in this very simple table I am able to make you understand all the concept. I don't see any videos like this on YouTube, so you know people are just providing you a long videos and they're not providing you the brief summary and it is also consuming lot of time. So you can watch my videos on 1.5x speed and you will got all the concept, because you know I'm using very simple terms, as well as whatsoever you are seeing on my screen is also written in the very basic English. Okay, so no difficulties to understand these things. So now let's talk about the objective approach in the research. अब ये यूज्ड इन हमने देख लिया. सब्जेक्टिव यूज सोशल साइंस में होगा, ह्यूमैनिटीज़ में होगा, लिटरेचर में होगा, फिलोसफी में होगा, और ऐसे स्टडीज़ में यूज़ होगा जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हैं, बिहेवियर इन्वॉल्व हैं, कल्चरल पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व हैं. और मेथड की बात करें तो इंटरव्यूज़ होगा, फोकस ग्रुप बनाए जाएंगे, एथनोग्राफिक स्टडीज़ होगी, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन होगा. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल ले लेते हैं.
स्टडिंग हाउ पीपल परसीव हैप्पीनेस इन द डिफरेंट कल्चर, जो डिफरेंट कल्चर में है कैसे लोग यहाँ पे परसीव करते हैं हैप्पीनेस। देन एनालाइजिंग द पर्सनल नरेटिव ऑफ द ट्रॉमा सर्वाइव, कोई ट्रॉमा कोई अर्थक्वेक हो गया है ना, उसको एनालाइजिंग करना। एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन नेचुरल साइंसिंग, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस एनालिटिक्स। स्टडीज रिक्वायर्स प्रिसाइज representative measurements. Okay, then if I talk about the methods, experiment, surveys, statistical analysis, machine learning tools है ना, AI, chat GPT, these all things come under the objective approach. I hope you are clear to it. अब यहाँ पे मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं है ना, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख दिए, क्योंकि यू नो व्हेन यू आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स यू शुड नो व्हाट आर द एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इट। ओके, सो सबसे पहले सब्जेक्टिव का एडवांटेज देखते हैं। तो ये कैप्चर करता है डीप इंसाइट्स, एक्सप्लोर इमोशन एंड पर्सपेक्टिव। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी बाइज्ड, डिफिकल्ट टू जनरलाइज। ओके, और अगर ऑब्जेक्टिव के एडवांटेज देखें तो प्रोवाइड फैक्चुअल एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल एक्यूरेसी प्रोवाइड कर देगा। इस रेप्लिकेबल रिमूव बाइस, इसमें बाइस होता है इसमें नहीं होता है। और इसमें डिसएडवांटेजेस क्या मिलेंगे हमारे पास, डिसएडवांटेजेस है मैं इग्नोर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, लैक डेप्थ इन द पर्सनल नैरेटिव्स। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक, अब कब हमें इसे यूज करना है। सो when we have to use the subjective approach, so when we are researching human emotions, cultural studies and personal experiences, then we have to use subjective approach. And when we are studying scientific phenomenon, statistical analysis and factual trends, then we will use objective approach. And one more approach you can opt for, and that is the combine approach, कि आप दोनों का थोड़ा थोड़ा ले लें, जिसे हम मिक्स्ड अप्रोच भी बोलते हैं है ना, जिससे हमें होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, सो व्हाट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर, दैट बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस आर द वैल्यूएबल इन द रिसर्च। while the subjective approach explores the personal interpretation and emotion, the objective approach relies on the verified data and facts. The choice between the two depends on the research questions, field of study and the nature of the data required. I hope I am clear to you. We are good to go to move to the chapter number 4, that is data collection and the data analysis method. So first of all you should know the introduction, means the definition. Okay, so data collection and the analysis are the crucial component of the research. बहुत ही ज़्यादा ये क्या है, crucial components हैं। Data collection refers to the gathering information relevant to the research questions, while data analysis involves the processing and interpreting the collected data to drive meaningful insights. समझ में आया? सो डाटा कलेक्शन एनालिसिस कैसे क्रूशियल है, डाटा कलेक्शंस रिफर्स टू द गैदरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चंस। आपने कुछ क्वेश्चंस ड्रॉ करिए, 4-5 क्वेश्चंस ड्रॉ करे, अब इसके लिए आपने डेटा कलेक्ट किया, नाउ यू हैव टू एनालाइज दैट डाटा एंड देन यू विल गॉट द रिजल्ट्स। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर मेथड। ओके, सो डेटा कलेक्शन कैन बी क्वालिटेटिव, जैसे कि आप नॉन न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव ले सकते हैं, या फिर आप क्वांटिटेटिव नंबर्स में ले सकते हैं जो कि आप मेज़र भी कर सकें। ठीक है, अभी अगर आपको समझ नहीं आया तो अब थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा फिर से पीछे जाइए और फिर समझने की कोशिश करिए। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देख सकते हैं आप देखिए। ठीक है, अब प्राइमरी डेटा कलेक्शंस मेथड्स की बात करेंगे हम। ठीक है, डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, अगर हम डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं प्राइमरी डेटा को तो उसके बारे में हम थोड़ा सा मेथड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सी मेथड लगाएंगे, सर्वे करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि बहुत समय पहले पोलियो की वो दवाई आती थी तो उसमें सर्वे होता था, क्वेश्चन पूछते थे क्या आपने पोलियो की दवाई ले ली, आपके बच्चों को आपने पोलियो की दवाई करा ली, देन यू हैव टू डू व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कलेक्टिंग द डेटा। ओके, डेटा। ओके, उसके बाद आप इंटरव्यूज़ ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस करिए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस, ड्रग
testing in the clinical labs is the example. Then you can have the focus group, then you can do the case studies. Okay, so when I will share this PDF, you can go through the examples and description. Okay, I don't want make this a very huge video. I just want to complete this video within 1 hour. So that is the reason why I'm not covering all the description and the example, because you know I have already explained you these things in the beginning only. And when you read on my screen, you can pause it, you can pause my screen, you can pause this video, you can have the proper notes as well, you can the screenshot and just read it, and you everything will be clear to you. Okay, now secondary data collections में क्या है, books and journals, government reports, company records, online database, newspapers and magazines, social media and web analytics. Okay, so you have to do that. I have already mentioned in the beginning all these things. Now you have to do read the description and the example, you can have the screenshot. Now let's move further. Data analysis method. So data analysis method we have also discussed earlier, but once again let's see सम, अगर दो तरीके से हमने समझा, दो एक क्वांटिटेटिव जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, एंड देन क्वालिटेटिव जिसमें डिस्क्रिप्शन होता है ना बहुत सारा. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जिसमें हम समराइज करते हैं डेटा को, जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्डाइज डेविएशन, एवरेज स्टूडेंट स्कोर्स इन क्लास. आपने जब DI पढ़ा होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, इफ़ यू हैव क्वालिफाइड द नेट एग्जामिनेशन और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट एग्जामिनेशन, you are on the right platform. Just you have to subscribe to my channel and join the Telegram channel, and then in your first attempt only you will clear this examination. It's my promise to you. So now this is the example from descriptive statistics. Now we have second one, that is inferential statistics, जिसमें हम प्रिडिक्शंस करते हैं. जैसे कि IPL में आपने ड्रीम 11 में एक अपनी टीम बनाई और यू प्रिडिक्ट दैट ये टीम अच्छा स्कोर करेगी, है ना. और हमारे टेलीग्राम पे जब मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ तो बहुत सारे लोग आंसर करते हैं, जिसमें मैं पोल क्रिएट करता हूँ कि अगली वीडियो किस पे आनी चाहिए. ओके, सो दिस इज कंसिडर इन द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. नाउ वी हैव रिग्रेशन एनालिसिस, जैसे कि हमें रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स जो हमारे आए हैं इनके बीच में रिलेशंस देना है. जैसे कि इम्पैक्ट ऑन द एडवर्टाइजमेंट और सेल्स. फॉर एग्जांपल कोई भी एक सरफ की कंपनी है, उसने एक ऐड चलाया टीवी पे, एंड नाउ दे वांट टू सी द इम्पैक्ट. सो व्हाट दे विल डू रिग्रेशंस एनालिसिस, ओके, व्हिच इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस. प्लीज रिमेंबर, ओके, आई हैव प्रेजेंटेड सो मेनी वेरी गुड एग्जांपल्स थ्रू आउट दिस वीडियो. प्लीज वॉच इट टिल एंड. ओके, सो अभी आप यहाँ तक आ गए हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अभी वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए. अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में. ओके, देन वी हैव हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और जिसे हम टी टेस्टिंग और अनोवा ची स्क्वायर भी कहते हैं. तो देयर में बी अ क्वेश्चंस नेम द टेस्टिंग विच इज़ नोन एज अनोवा ची स्क्वायर. सो द राइट आंसर इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हम डिटरमाइंस करते हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. एक एग्जाम्पल समझे तो टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग. सो जो कोविड के लिए एक न्यू ड्रग आई उसको हम टेस्ट करेंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज द हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ठीक है, देन वी हैव डेटा विजुअलाइजेशंस, जिसमें हम ग्राफ्स, चार्ट्स, डैशबोर्ड्स, है ना, जिसमें प्रेजेंट करते हैं, पाई चार्ट्स. वेरी आप तो पढ़े होंगे, अगर आप 10th क्लास में मैथ्स तो आपको पता होगा, है ना, ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं. नाउ लेट्स मूव टू दी क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, नॉन न्यूमेरिक मेथड. तो इसमें हम कौन कौन सी मेथड लेंगे? थीमेटिक एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, नैरेटिव एनालिसिस, ग्राउंडेड थ्योरी, डिस्कोर्स एनालिसिस. नाउ लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन. सो थीमेटिक एनालिसिस मतलब क्या? आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड द थीम्स इन बेस टेस्ट बेस्ड डेटा. सो आपको यू विल सी अ वेरी पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द राइमिंग स्कीम. So what you are doing the thematic analysis. So analyzing interview scripts, so many interview scripts are there on YouTube. When you are analyzing it, then it is also considered in the thematic analysis. Now let's move to the content analysis. What is this content analysis? So this examines content fluency and the meaning, studying social media post for the sentiment. This is the best example of this content analysis. So many content are there on the social media, you know it, and when you are studying social media post for your sentiment, then it is considered in the content analysis, and it will come into the
qualitative data. Okay, now we have this narrative analysis which we have interprets stories and experiences. जहाँ पे हम stories और experience को interpret करेंगे, that is called as narrative analysis and it is considered in the qualitative analysis. Okay, so if everything is clear to you, now we have this grounded theory. This develops theory based on the observation data. So you have this particular data where you have observed so many things, and what you have done the grounded theory. और एग्जाम्पल समझे तो क्रिएटिंग अ न्यू साइकोलॉजिकल मॉडल फ्रॉम द इंटरव्यूज. सो आप बहुत सारे इंटरव्यूज ले रहे हैं और एक न्यू साइकोलॉजिकल मेथड का निर्माण कर दे रहे हैं, देन इट इज कंसिडर्ड द ग्राउंडेड थ्योरी. देन वी हैव लास्ट वन, दैट इज डिस्कोर्स एनालिसिस, जिसमें हम स्टडीज कर रहे हैं लैंग्वेज यूज का एंड कम्युनिकेशन का, जिसमें पॉलिटिकल, आप बहुत सारे मोदी जी की स्पीच सुन चुके हैं ना, इफ समवन इज एनालाइजिंग देन दैट इज डूइंग इज डिस्कोर्स एनालिसिस विच इज कम अंडर द क्वालिटेटिव डेटा. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू. अब इस दोनों डेटा में से आपको सही कैसे चूज करना है, चूजिंग द राइट मेथड विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग एनी रिसर्च. सो रिसर्च टाइप कितने 5 प्रकार की होती है? एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेटिव, केस स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल. वी हैव डिस्कस इन द बिगनिंग. ओके, अगर आपको अभी फिर से कुछ समझ में नहीं आने लगा, अब फिर से वापस से जाइए और फिर से मेरी वीडियोस को देखिए. एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक समझ नहीं आता है तब तक मेरी वीडियोस देखना है आपको. ठीक है. सो एक्सपेरिमेंटल होगा तो इसमें एक्सपेरिमेंट्स होंगे, सर्वेज होंगे, है ना. ओके, डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें भी सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशन होगा. कोरिलेशन होगा तो इसमें भी सर्वेज और सेकेंडरी डाटा होगा. केस इंटरव्यूज, केस स्टडीज होगा. अगर आपका रिसर्च टाइप तो इंटरव्यूज लोगे, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च टाइप होगा आपको तो रिपेंडेड सर्विस लोगे, केस स्टडीज लोगे, है ना. और अब जब ये चीज़ें आप रिकमेंड डाटा कलेक्शन मेथड, इफ़ यू आर डूइंग दिस, अगर आप कोई एक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, तो ये आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप ये वाले चीज़ों का यूज़ करिए, है ना. तो आप देखिए, ये 5 आपको मिल गए. ये 5 में से आप कोई एक रिसर्च कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 में से. सो आप अगर केस स्टडी वाला रिसर्च कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यूज़ और डॉक्यूमेंट्स लेना है, ये रिकमेंडेड है. ठीक है. और डेटा एनालिसिस के लिए क्या रिकमेंडेड है? नरेटिव एनालिसिस एंड द थीमेटिक कोडिंग एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द बिगिनिंग. और हियर जस्ट आपको 5 मिनट पीछे आना है एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, so we are good to go to move to the use of computer and ICT in research. Let's start our chapter number 5 for Madhya Pradesh Assistant Professor Examination. Are you ready, guys? Okay, so let's see. So सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं आईसीटी की. क्या है डेफिनेशन, थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं. सो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द मॉडर्न रिसर्च. देखो, अभी जितनी भी रिसर्च हो रही है सब में कंप्यूटर इन्वॉल्व है. यू आर चेकिंग द प्लेगरिज्म, इट वेयर कंप्यूटर इज इन्वॉल्व. इफ यू आर प्रिपेयरिंग सम ड्राफ्ट, यू आर शेविंग इन द वर्डप्रेस और एनी वर्ड डॉक्यूमेंट्स in your PC where computer is involved, and you are also communicating with your guide through the using laptops as well as mobile phone, and it also a kind of a computer. So mobile phone is also a kind of I'm considering mobile phone as a kind of communication. Okay, so अब इसमें आईसीटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. सो अब हमें देखने हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले है हार्डवेयर. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए, आपने स्कूल में पढ़ा होगा. हार्डवेयर क्या? कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं. और सॉफ्टवेयर का स्टैटिकल टूल्स, डेटाबेस, रिसर्च एप्लीकेशंस. सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैपटॉप है. ओके, सो आई हैव दिस ब्रांड न्यू HP पवेलियन लैपटॉप. ओके, फुल्ली टच स्क्रीन लैपटॉप. So I have server, I have internet connection, I have SSD. Okay, so now these are the hardware, but I am running a Windows 11. Okay, latest Windows 11. So I am downloading so many tools, as well as I have database, as well as I have research applications. Applications means research apps. So I am using that, and it is considered in the software. Not so tough to understand these things. Okay, now let's move to the explanation of the use of computer and ICT in research. अब क्या है रोल? तो
तो सबसे पहला रूल तो यही आ जाता है ना, डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज। आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आप उसको स्टोर कहाँ करेंगे, तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं तीन जगह कर। एक ऑनलाइन सर्विस को आप कहाँ पे, गूगल फॉर्म्स के जरिए आप ऑनलाइन सर्विस करा सकते हैं। उसके बाद सर्वे मंकी करके एक और गूगल फॉर्म जैसा ही है, आप उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के भी पास भी टूल्स हैं, है ना, उसके भी टूल्स यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास लार्जर डेटाबेस है, जैसे सेंसस होते हैं हर 10 साल में, है ना। 2011 के बाद कोई जानता है कि 2021 में क्यों नहीं हुआ सेंसस, आपको कमेंट करके बताना है। देन साइंटिफिक रेस्पोसिटरीज। ओके, उसके बाद वी हैव क्लाउड स्टोरेज, वी हैव AWS एज वेल एज एज्योर, सो मैनी क्लाउड, जहाँ पे हम क्लाउड पे डाटा कर रहे हैं, हम एकदम अपने कंप्यूटर में नहीं कर रहे हैं। ओके, so we need to collect these data, we need to store these data, so that is the reason why we need a computer. So now I hope I'm clear to you. Now let's move to the second point, it is data processing and analysis. So you have so much data with you, now you have to process it and you have to analyze it. So it is not possible to human mind. So देखिए, बहुत समय पहले में रिसर्च आपने देखा कर, मतलब लोगों को देखा होगा जिन्होंने PhD की है, what they are doing, they have took 10 years 5 years 7 years 11 years for doing, but आजकल आप देख सकते हैं 2 साल 3 साल में जल्दी से जल्दी PhD हो जाती है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, द रीज़न बिहाइंड इज द कंप्यूटर ICT। सो बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे SPSS, R, Python, MATLAB। ओके, सो दीज आर द डेटा प्रोसेसिंग टूल्स। मे बी आई हैव मेंशन इन द ब्रैकेट ऑल द टूल्स, मे बी यू कैन बी आस्क्ड दैट, बताइए कि ये टूल्स किस चीज़ यूज़ होता है। तो there will be 4 options: data collection and storage, data processing and analysis, option number 3 literature review and referencing, research writing and the publication. So the right answer where Python is used, the data processing and the analysis. So ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम होंगे ना जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में फ्रॉम यूनिट 10. So that is the reason why I am taking care of each and every point. Okay, so when I appeared in this examination I just cleared it because I know कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं. आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, है ना. Now let's move to the another point, data processing. Data visualization software होता है जैसे कि Tableau, Power BI. Okay, so what are these are the data visualization software. Then we have machine learning and AI application in the predictable analysis. Okay, so these are the data processing analysis. Now we have so many tools for the literature reviews and the referencing. For example, we have digital libraries. So what kind of digital libraries we have? We have Google Scholar, Gestor. We have also can you name any, have you heard the name Sodh Ganga? It is also a digital library where you can see the literature review and the referencing styles, and you can have lots of help from the Sodh Ganga. Okay, so very nice initiative by the government of the India. So now let's move to the citation management tools. So what are the types of the citations आपको पता होंगे ना, जब आप referencing style में citations use करते हैं. जैसे कि आपने कोई लाइन लिखी, it's cats and dog outside in the monsoon, then you will see at all Rizal. ऐसे करके आपने देखा होगा, है ना, जब आपने अगर कोई रिसर्च पेपर पढ़ा होगा. सो डेट इज कॉल्ड एज द सिटेशन मैनेजमेंट टूल्स. तो उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल Zotero, EndNote and Mendeley, these are the tools. Then we have plagiarism detection tools, है ना. Grammarly is the tools where you can check the grammar, as well as you can also have check the plagiarism, as well as Turnitin. You have to tell me the name of an plagiarism tool that is introduced by the government in the comment section. Okay, now let's see the research writing and the publication. So we are also using so many tools. For example, MS Word, LaTeX. We are using these tools for the word processing and the software. Okay, फॉर्मेटिंग एंड द प्रूफ रीडिंग के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं. सो हेयर कंप्यूटर इज यूजिंग. देन वी हैव सिमुलेशन एंड द मॉडलिंग. सो for example, used in scientific engineering and medical researches, AutoCAD analysis, Stata, climate modeling, drug testing, simulations and the economic forecastings. So here also computer is using. So you can see the role of computer is really very huge. So now let's talk about the role of the ICT in the research. So first of all, what we have to do, कहाँ पे ICT में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है. कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि जूम मीटिंग आपने
ली होगी, गूगल मीट, ओके, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ऑनलाइन फॉरम एंड रिसर्च कम्युनिटीज़, जो आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, academia.education से बना लेते हैं, ओके, सो दे आर कम्युनिकेटिंग थ्रू देयर वेबसाइट ऑल्सो, so computer is using in the communication and the collaboration. I hope I'm clear to you. If I'm speaking very faster, so you can slow down. ये देखिए YouTube में आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। जब ये वीडियो अब ये देख रहे हैं, अगर आपको मेरी आवाज़ तेज़ लग रही है आप इसको कम भी कर सकते हैं, अगर आपको मेरी आवाज़ धीरे लग रही है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, है ना। इफ़ यू वांट टू वॉच यू कैन वॉच इट। मैं जैसा बोलता हूँ और मैंने अपने आप को एनालाइज किया है, आई कैन सी दैट अगर आप 1.5x के में भी अगर आप ये वीडियो को देखेंगे आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, देन यू कैन स्लो इट डाउन ऑल्सो, देयर इज़ एन ऑप्शन, है ना, यूट्यूब में ऑप्शन है, यू कैन डू इट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ व्हाट वी हैव, कंप्यूटर का अगला यूज़ क्या है, एक्सेस टू ऑनलाइन रिसर्च रिसोर्सेज। सो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल है ना। वी हैव टॉक्ड अर्लियर, अभी हमने बात की यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों की, इतने सारे टूल्स हैं, शोध गंगा की बात की, है ना। सो देयर ऑल्सो दिस कंप्यूटर इज़ यूजिंग। देन रिसर्च एथिक एंड सिक्योरिटी में भी, जैसे कि बहुत सारे आपके डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर रहा है कंप्यूटर। देन साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग बाय द कंप्यूटर। देन ब्लॉकचेन फॉर द मेंटेनिंग रिसर्च इंटीग्रिटी, ब्लॉकचेन का क्रिएशन हो रहा है आपकी मेंटेन करने के लिए रिसर्च इंटीग्रिटी। देन प्रेजेंटेशन, आप जितनी भी प्रेजेंट करते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, यू आर प्रेजेंटिंग ऑन अ वेरी बिग बोर्ड एंड इट इज here also this computer is involved. I hope I'm clear to you. Now we have this last section, that is chapter number 6, where we will have this citation, very important। देखिए अब इस वीडियो के हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं, अब ये लास्ट है, आपको थोड़ी सी और हिम्मत रखनी पड़ेगी मेरे साथ और हम इसे ख़त्म करके इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। सो गेट रेडी गाइज, डोंट बी लेजी बिकॉज यू नो laziness kills you and it will also kills, and when you will not study then how will result will come in your favor. So that is the reason why you should be very active while watching my videos. So I hope you have watched all the videos. ठीक है, आप मेरी हर एक वीडियोस को देख ले। मैं जानता हूँ मेरी कुछ वीडियोस में आवाज़ सही से नहीं है, that was the mic problem and now I have brought a very brand new mic. So I hope in this video everything is clear to you. So now let's move to this MLA 8th edition citations editing and bibliography, where we will see the 8th edition citation। ठीक है, अभी आपको citations में प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी सॉल्व हो जाएगी। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो द मॉडर्न MLA का पहले फुल फॉर्म ही देख लेते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और हमें 8th एडिशन पढ़ना है, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, ह्यूमैनिटीज़ में होता है, स्पेशली इन लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज़ एंड द लैंग्वेज रिसर्च में होती है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर स्टडिंग MLA। देन APA स्टाइल इज़ ऑल्सो देयर, जिसको साइंस बैकग्राउंड वाले भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको एक वीडियो उस पर भी चाहिए, यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो, आई विल प्रिपेयर separate video for other style, for example APA style, and I will also bring some more styles if it is there. I will do my research also. So it provides guidance for the formatting, citing resources and compiling the bibliography. That is the reason why this MLA style is very important. So now we will see the use of citations. So we do in-text citation. What is this? So used to credit sources, आपने किसी की कोई लाइन लिखी हुई है, you have to give the credit, है ना। Then you have to consist the author's last name and page number in the parentless। तो आपको authors का पहले last name लिखना है पहले, और फिर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम नहीं, किसी का नाम ले लेते हैं, बालचंद्र कुमार है, तो वी हैव टू डू इट लाइक कुमार बालचंद्र, ओके। देन आई हैव मेंशन द फॉर्मेट, ऑथर्स लास्ट नेम एंड द पेज नंबर। एग्जांपल स्मिथ 45। इफ नो ऑथर यूज अ शॉर्ट एंड टाइटल फॉर द वर्क कोटेशंस मार्क और इटैलिक्स। यहाँ पे सिनेरियोज दे दिए हैं, मैंने एग्जांपल दे दिए हैं बॉक्स में। व्हेन आई विल शेयर दिस PDF, आप थोड़ा सा डेप्थ में जाइएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वन ऑथर आएगा तो डोई 112 पेज नंबर पे इसका रेफरेंस आपने दिया है। टू ऑथर स्मिथ एंड जोन्स, और आप 3 और मोर है तो विलियम एट ऑल 134। नो ऑथर्स हैं तो ग्लोबल वार्मिंग 25। ऐसे करना है। Now citing different sources in MLA 8. So MLA 8 follows a universal format based on the core elements regardless of the source type. अब देखिए, अब हमें बहुत सारी different sources को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बुक फॉर्मेट में देख लेते हैं। ऑथर्स लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल ऑफ द बुक, पब्लिश ईयर, ठीक है, ये बुक का है।
तो एग्जाम्पल शेक्सपियर, विलियम, हैमलेट, पेगुइन 2003, यहाँ से आपने सोर्स उठाया है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू, आई एम क्लियर टू यू। ओके ग्रेट। सो नाउ जर्नल्स आर्टिकल्स वी हैव दिस। अब जर्नल आर्टिकल्स में है, इसका क्या फॉर्मेट है? ऑथर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, जर्नल्स नेम, वॉल्यूम और ये ईयर। एग्जांपल जॉनसन मार्क द रोल ऑफ द एआई इन द मॉडर्न लिटरेचर, जर्नल ऑफ द डिजिटल ह्यूमैनिटीज, ये वॉल्यूम ऐसे करके। अगर आपने कोई वेबसाइट से उठा लिया तो आपको कैसा करना है? तो इसका फॉर्मेट है ऑथर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल ऑफ द वेब पेज, वेबसाइट नेम, डेटा, यूआरएल। एग्जांपल लेते हैं मिरर, जॉन, अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेटिक चेंज, नेशनल जियोग्राफिकल 5 मई 2021 और यहाँ पे यूआरएल डाल दिया। नाउ लेट्स सी द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। इसका क्या फॉर्मेट है? ऑथर्स, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, न्यूज़पेपर नेम, डेट और पेजेस। ब्राउन, लीजा, टेक एडवांसेस इन 2000, द न्यूयॉर्क टाइम्स 5 जनवरी 2014। देन इफ आर टेकिंग रेफरेंसेस फ्रॉम एनी यूट्यूब वीडियोस, ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल्स। सो यूट्यूब वीडियोस में कैसा फॉर्मेट? टाइटल ऑफ द वीडियो, यूट्यूब, अपलोडेड बाय द चैनल नेम, डेट, यूआरएल। एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ रोम, यूट्यूब, अपलोडेड बाय द हिस्ट्री चैनल। सो यू हैव टू डू द ऑथर, मतलब ऐसे किसी भी अरे गहरे का उठा के नहीं डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर इफ यू आर टेकिंग द रेफरेंसेस फ्रॉम द फिल्म, देन व्हाट शुड यूज द फॉर्मेट? सो फॉर्मेट इज द टाइटल ऑफ द फर्म, डायरेक्टेड बाय द डायरेक्टर नेम्स, प्रोडक्शन कंपनी, ईयर। एग्जांपल इंसेप्शन, डायरेक्टेड बाय द क्रिस्टोफर नोलन, वैरन ब्रॉस 2010। आई होप मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड कर दिया इस वीडियो में। इसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप इसको लाइक करिए, आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और इसको सेव कर लीजिए वीडियो को, इफ़ पॉसिबल डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज यू नो ऐसे आपको कोई देने ही नहीं वाला पूरे यूट्यूब में। नाउ 8th एडिशन की बात करते हैं, एडिटिंग इन दी MLA 8th एडिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी। तो हम यहाँ पे कौन सा यहाँ पे फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं? 12 पॉइंट्स टाइम न्यू रोमन फॉन्ट यूज़ होता है MLA 8th एडिशन में। डबल स्पेस इन द इंटायर डॉक्यूमेंट्स, डबल स्पेस होती है इंटायर डॉक्यूमेंट्स में। देन 1 इंच मार्किंग ऑन द ऑल साइड, यहाँ पे ऐसे 1 इंच का मार्जिन होना चाहिए। इंडेंट फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ बाई 0.5 इंचेस। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट्स, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक और यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर मीन्स। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसका आपका काम बन जाएगा और इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। नाउ लेट्स सी द टाइटल एंड हेडिंग। सो नो टाइटल पेज अनलेस रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड नहीं है टाइटल पेज तो आपको टाइटल पेज देने की ज़रूरत नहीं है। देन यू हैव टू पुट द स्टूडेंट्स नेम, इंस्ट्रक्टर नेम, कोर्स नेम एंड द डाटा ऑन द टॉप लेफ्ट। टाइटल शुड बी सेंट्राइज ऑफ द टाइटल केस, नॉट बोल्ड और अंडरलाइन। पेज नंबर की बात करें तो लास्ट नेम एंड द पेज नंबर इन द टॉप राइट ऑफ द कॉर्नर। एग्जांपल इसमें 2। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिब्लियोग्राफी। सो व्हाट इज बिब्लियोग्राफी? सो वर्क साइडेड पेज इन MLA 8 में क्या होना चाहिए? बिब्लियोग्राफी आपने लास्ट में देखा होगा, बहुत सारे ऑथर्स के नाम रहते हैं ना, इट इज कॉल्ड एज द बिब्लियोग्राफी। सो फॉर्मेटिंग द वर्क साइटेड, टाइटल इज वर्क साइटेड, सेंटर एट द टॉप, entry should be in the alphabetic order by the author's last name, use hanging indent, first line plus left, subsequently lines addend, double spacing should be maintained. Okay, I will give you the example, I will let you know मैं आपको क्रोम पे दिखा देता हूँ bibliography. What you have to do? You have to search for the bibliography, just wait for a while. आपको यहाँ पे सीधे आ जाना है इमेज में और आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं बिब्लियोग्राफी। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बिब्लियोग्राफी you can see on my screen. I hope it is clearly visible to you, and you can search it by yourself on the Google. Okay, it's not a very challenging task for my students. I know my students are very smart, so आपको मैंने बता दिया है एंड आप यहाँ पे सैम्पल मैंने दे दिया है, आप इसको रीड आउट करिए और एक बार हम जरा सा कंक्लूजन समझ लेते हैं हमने आज जो भी पढ़ाई की है। सबसे पहले MLA से समझते हैं। MLA 8th edition provides a flexible standardized system for the citing sources across the various formats, and it ensures क्या क्या चीज़ें कर रहा है? Ensure consistency, credibility and clarity।
3C। ओके, 3R का नाम तो आपने सुना होगा, रिसाइकिल, रीयूज एंड, you have to tell me in the comment section. In writing follow, okay, so nothing to do it about, जो मैंने आपको समझाया। ओके, 3R मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ तीसरा R, क्योंकि मुझे आई एम नॉट एबल टू रिकॉलिंग इट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अ लॉट ऑफ थैंक्स फ्रॉम me. I hope you have enjoyed this video. A lot of thanks from me. And if you like this video, please like it, please subscribe, and I will see you soon. Okay, all the best my students, see you in the next video. Thank you so much for joining me.